अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to start a topic of chapter number 8, which is the evaporation. So let's start our lecture. Question number 2, give 2 uses of cooling effects by evaporation. So आपने यहाँ पर evaporation के cooling effects के आपने कोई से 2 uses यहाँ पर mention करने हैं. First one is perspiration. So perspiration के through हमारी body से जो water loss होता है, that also evaporates and that also causes cooling. So we can write it as evaporation causes cooling as human body makes use of evaporative cooling perspiration. It helps to cool our bodies. The second one is water evaporation from the leaves of tree also cooled our environment. तो आपके जो trees हैं उनके leaves से भी जो water evaporate होता है, that also causes cooling in the environment. So I hope ये question भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. Now the next question number 3, that how evaporation differs from vaporization. तो evaporation जो है वो vaporization से किस तरह से differ करती है. So evaporation और vaporization, basically vaporization जो है ये एक broader term है कि जिसमें evaporation भी आ जाती है और boiling भी आ जाती है. So अगर मैं evaporation को define करूं, first of all, that evaporation is the changing of a liquid into vapors from the surface of liquid without heating it. कि एक liquid का gas में change होना from the surface of the liquid and also without heating it, बगैर heat किए. So basically this phenomena is called evaporation. लेकिन इसको आप vaporization भी कह सकते हैं. Vaporization means कि liquid का vapors में convert होना, this is called vaporization. तो evaporation में vaporization भी हो रही है. अब अगर हम boiling की बात करते हैं तो boiling में भी liquid जो है वो vapors में convert होते हैं. That's mean कि वहां पर भी vaporization हो रही है. So vaporization जो है वो आपकी liquid के surface से भी हो सकती है, within the liquid भी हो सकती है, और vaporization किसी टेम्परेचर पर भी हो सकती है. Vaporization को हम further define करते हैं. Vaporization is the changing of a liquid into gaseous state from the surface of a liquid with heating it. The process of boiling takes place at a certain fixed temperature. Vaporization takes place not only from the surface of liquid but also within the liquid. So I hope आपको vaporization और evaporation में concept clear हो गया होगा कि इनमें difference क्या है. अगर आप एक डिश में कुछ पानी लें तो थोड़ी देर के बाद या कुछ दिनों के बाद वो पानी वहां से गायब हो जाता है. इसी तरह से बारिश के बाद भी रोड्स पर खड़ा पानी वो भी कुछ दिनों के बाद वहां से ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है. तो वो पानी कहाँ जाता है? तो वो पानी बेसिकली वेपर्स बन के वो हवा में चला जाता है, एंड दैट इज ऑल ड्यू टू द evaporation. तो ये evaporation क्या है? So, evaporation is the changing of a liquid into vapors, gaseous state, from the surface of the liquid without heating it. So, evaporation जो है वो एक liquid का vapors में convert होना, और we can say कि liquid का gas में convert होना from the surface of the liquid without heating it. कि बगैर इसको heat किए liquid का vapors में convert होना, that is called evaporation. यहां पर मैंने एक और वर्ड पढ़ा, from the surface of the liquid, कि liquid के surface से. तो ऐसे phenomena को फिर हम कहते हैं evaporation. अब आप जानते हैं कि liquid के molecules जो हैं वो randomly move कर रहे होते हैं. तो हमने ये start में discuss भी किया था कि liquid का हमेशा random motion होता है. इनके molecules जो हैं वो randomly move करते हैं, so that's why we call it as a random motion. अब जब ये randomly move कर रहे हैं, motion में हैं, हरकत में हैं, तो हम ये कहते हैं कि उन molecules की kinetic energy है, because जो कोई भी molecules जब motion में हो, हरकत में हो, तो हम कहते हैं कि उनमें kinetic energy मौजूद है. अब जब भी एक सनलाइट की हीट इन पर फॉल करती है
तो उसकी वजह से सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। अगर मैं बात करूं उस लिक्विड में जो बॉटम के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी सरफेस से। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से सरफेस से मॉलिक्यूल जो हैं वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर वो हवा में जाना शुरू हो जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। इसमें सरफेस से लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो वेपर्स बनकर वो हवा में जाना शुरू हो जाते हैं एंड विदाउट हीटिंग इट। सो यहां से एक और क्वेश्चन ज़हन में आता है कि अगर ये एवेपोरेशन है तो फिर बॉइलिंग क्या है। कि बॉइलिंग में भी हम ये जानते हैं कि जब आप किसी चीज को बॉइल करते हैं तो उसमें भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर्स बन के वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग। तो फिर बॉइलिंग में और एवेपोरेशन में फर्क क्या है? नो, आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और जब ये बॉयल होगा तो आप जानते हैं कि इस पानी के अंदर कुछ बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। सो एवेपोरेशन में क्या था कि वेपर जो है वो उस लिक्विड के सरफेस से बनना शुरू हो रहे हैं, और इसमें क्या है कि पानी के अंदर कहीं से भी वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। So, यहां पर ये एक डिफरेंस हो गया कि एवेपोरेशन में जो वेपर बनते हैं वो हमेशा लिक्विड के सरफेस से बनते हैं, और बॉइलिंग में जो वेपर्स बनते हैं वो विद इन द लिक्विड कहीं से भी वो बन सकते हैं। Now the second difference is एवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो जाती है। एवेपोरेशन को कोई खास टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता, बट द रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वहां पर एवेपोरेशन भी उतनी ज्यादा होगी, तो वहां पर एवेपोरेशन का जो रेट है वो भी फास्ट होगा, और टेम्परेचर जितना कम होगा वहां पर एवेपोरेशन का रेट भी उतना स्लो होगा। लेकिन जो बॉइलिंग है इसके लिए एक खास टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। जैसा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ही बॉयल होगा, वो उससे पहले बॉयल नहीं हो सकता। यहां पर एक और डिफरेंस हो गया कि बॉइलिंग के लिए आपको फिक्स्ड टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, लेकिन एवेपोरेशन के लिए आपको कोई टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं है। एवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन दैट एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। व्हाई? एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग किस तरह से कॉज करती है? जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि एवेपोरेशन होती है हमेशा लिक्विड के सरफेस से, और जब सन की लाइट या कोई भी हीट जब उस पर फॉल करती है तो उस सरफेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो फास्ट हो जाता है, और उस फास्ट मोशन की वजह से सरफेस से वो मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो गए, फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स सारे के सारे एवेपोरेट हो गए, तो पीछे जो मॉलिक्यूल्स रह गए वो मॉलिक्यूल्स फास्ट मूविंग नहीं है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वहां पर जो बॉडी है वो कूलिंग कॉज करती है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। कि जब फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे तो नीचे जो आपके लोअर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स आपके रह जाएंगे, तो वहां पर एवेपोरेशन जो है वो फिर कूलिंग कॉज करता है। जैसा कि अगर हम कुछ कपड़ों को धोकर डालते हैं स्ट्रिंग्स पर, तो वहां पर भी वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बिकॉज उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे एवेपोरेट हो गए। जब वो एवेपोरेट हो गए वेपर्स बन के, तो आपके जो कपड़े थे वो जल्दी से ड्राई हो गए। एवेपोरेशन ने यहां पर भी क्या किया? कूलिंग कॉज कर दी। सिमिलरली हमारी बॉडी में जो प्रेस्पिरेशन का जो फिनोमिना है कि जिसमें बॉडी जो है वो वाटर लूज करती है, तो वाटर लूज करने पर भी जब वाटर आपकी स्किन पर आ जाता है तो वो भी फर्दर एवेपोरेट होता है, और एवेपोरेशन के बाद आप भी फील करते हैं, एक बॉडी फील करती है कि उसके अंदर कूलिंग कॉज हो चुकी है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एवेपोरेशन, कि इसमें एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग किस तरह से कॉज हो रही है।
नाउ हियर आर सम ऑफ द फैक्टर्स कि जिन पर एवेपोरेशन डिपेंड करती है. द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर. तो टेम्परेचर पर एवेपोरेशन किस तरह डिपेंड करती है? So, मैंने इसी लेक्चर में आपको बताया कि एवेपोरेशन का जो रेट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर एवेपोरेशन भी फास्ट होगी. जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर एवेपोरेशन भी स्लो होगी. फॉर एग्जाम्पल कि जब हम सर्दियों में कपड़े धोकर डालते हैं तो वो काफ़ी देर से सूखते हैं, लेकिन अगर आप गर्मियों में कपड़े धोकर डालें तो वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर. गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है तो कपड़े देर से सूखते हैं. सो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि एवेपोरेशन जो है वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया. एवेपोरेशन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर. सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, लार्ज होगा, वहाँ पर एवेपोरेशन भी उतनी ज़्यादा फास्ट होगी. और सरफेस एरिया जितना स्मॉल होगा वहाँ पर एवेपोरेशन भी उतनी कम होगी. फॉर एग्जाम्पल एक चाय का कप, अब उसका सरफेस एरिया सिर्फ उतना ही है जो कि उसका ओपन साइड है, तो वहाँ से वेपर्स बनकर मॉलिक्यूल जो है वो एवेपोरेट होते हैं और इस तरह से चाय जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती है. लेकिन अगर आपने चाय को जल्दी ठंडा करना हो तो आप क्या करते हैं कि आप चाय को डालते हैं पिर्च में और चाय फ़ौरन से ठंडी हो जाती है. सो बेसिकली पिर्च में डालने पर क्या हुआ कि आपने उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया. सो अल्टीमेटली वहाँ पर एवेपोरेशन का रेट फास्ट हो जाएगा और आपकी चाय जल्दी से ठंडी हो जाएगी. नाउ द थर्ड फैक्टर इज विंड, हवा. सो लेट्स सपोज कि आपने कहीं एक कपड़े धोकर डाल दिए, तो अगर वहां पर तेज हवा चल रही होगी तो वो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे. और अगर वहां पर हवा बिल्कुल ही नहीं चल रही होगी तो फिर वो कपड़े काफी देर से सूखेंगे. सो बेसिकली विंड जो है ये भी उन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, उनका जो रैंडम मोशन है, उसको ये फास्ट कर देता है. सो अल्टीमेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर भी एवेपोरेशन फास्ट हो जाती है. सो विंड के इंक्रीज होने से एवेपोरेशन रेट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है. नाउ द फोर्थ फैक्टर इज नेचर ऑफ द लिक्विड, कि वो लिक्विड जिसमें एवेपोरेशन हो रही है उसकी नेचर क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेरे पास दो लिक्विड हैं, एक वाटर है और एक पेट्रोल है. तो आप ये जानते हैं कि वाटर और पेट्रोल में से पेट्रोल जल्दी एवेपोरेट कर जाएगा. वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नेचर. सो एवेपोरेशन डिपेंड करती है लिक्विड की नेचर पर भी, कि लिक्विड की नेचर किस तरह की है. अब वाटर की जो नेचर है, एवेपोरेशन उसमें भी हो रही होगी लेकिन वो काफ़ी स्लो हो रही होगी. सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड, कि जिस तरह की नेचर होती है उसके अकॉर्डिंग वहां पर एवेपोरेशन भी फास्ट या फिर स्लो होती है. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ एवेपोरेशन. आई होप आपको ये फैक्टर्स भी बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. तो इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच इज द कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर्स. तो आपके रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग सिस्टम है वो भी इस एवेपोरेशन पर डिपेंड करता है. इसके आप जानते हैं कि हम अपने रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते हैं फ्रियॉन गैस या फिर CFC गैस, और जिसकी एवेपोरेशन से रेफ्रिजरेटर्स में कूलिंग कॉज होती है. लेकिन अब इस CFC गैस या फिर फ्रियॉन गैस पर बैन कर दिया गया है, बिकॉज ये CFC गैस जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जो कि ओजोन लेयर को बहुत बैडली इफेक्ट कर रही है. उसमें ये होल्स क्रिएट कर रही है और उस होल्स की वजह से सन से निकलती हुई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ज़मीन तक पहुंच रही हैं. तो ओजोन लेयर बेसिकली एक ऐसी लेयर है जो कि इन सब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को, जो कि हार्मफुल रेडिएशंस हैं, उनको ये ब्लॉक कर देती है. अब चूंकि इस CFC गैस की वजह से उन ओजोन लेयर्स में होल्स क्रिएट हो चुके हैं, तो उन होल्स से ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़मीन तक पहुंच रही हैं, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए, जो कि लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है. सो इस ओजोन लेयर को सेफ रखने के लिए इस CFC गैस पर अब बैन कर दिया गया है. अब इस CFC गैस या फिर इस फ्रियॉन गैस की जगह हम इस्तेमाल करते हैं अमोनिया गैस, जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है और इसकी एवेपोरेशन से कूलिंग भी कॉज होती है.
सो आई होप यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे रेफ्रिजरेटर में भी कूलिंग किस तरह से कॉज हो रही है। सो हम डिस्कस करते हैं एक मिनी एक्सरसाइज। सो मिनी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, हाउ स्पेसिफिक हीट डिफर्स फ्रॉम हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट जो है वो हीट कैपेसिटी से किस तरह से डिफर करती है। सो आप जानते हैं कि हीट कैपेसिटी तो ये है कि अगर एक सब्सटेंस का आपने 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना हो तो उसके लिए कितनी हीट आपको रिक्वायर्ड होगी, दैट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये कहती है कि अगर आपके पास सिर्फ 1 किलोग्राम मास है, अगर आपने उसका 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना हो तो उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो वी कैन डिफाइन इट एज heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of a substance through 1 Kelvin is called heat capacity। और heat capacity का फॉर्मूला है heat capacity is equal to mc। इसका यूनिट है joule per kilogram। सिमिलरली अब हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। Specific heat capacity is the heat required to raise the temperature of a 1 kilogram substance through 1 Kelvin। और इसका फॉर्मूला है C is equals to delta Q over M delta T। और इसका यूनिट है joule per kilogram per Kelvin। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। See you in the next lecture। Till then, take care। Allah Hafiz।